Good evening, everyone. I am Shruti from ARC, that is Alumni Relations Cell, Shivaji College, and we welcome you all to Webinar 5.0. ARC aims to build a platform where the current students can learn from the former students, seek advice, and one-on-one mentorship. Today, we welcome you all to the Webinar 5.0 with none other than Mr. Lake Bajaj. Mr. Lake Bajaj is the psychologist and mind coach for every age group. He believes that mental health is important, more than physical health, due to which it requires constant attention. He did his bachelor's in engineering from IIT Delhi and later on pursued his master's in clinical psychology. He is an expert mind coach specializing in depression, anxiety, anger management, mood disorders, and all mental issues. He is also the founder of MindTune. MindTune is a venture with an aim to improve the mental health of people struggling with daily life issues by providing solutions incorporating psychology, data science, and technology. In this session, he will deliberate on the topic managing stress and anxiety amid COVID-19 crisis. This is the culmination of the vision of our acting principal, Dr. Shiv Kumar Sahadev, our convener, Dr. Darshan Pandey, our beloved president, Ms. Nishtha Sethi, and the vibrant team of ARC. Over to Mr. Lake Bajaj, sir. Hi, good evening, everyone. My name is Lake Bajaj, and Shruti has already briefly introduced me, so I won't waste any further time in introduction. In today's session, we'll be following certain guidelines which you can see on the screen. I hope screen is visible to you. And so this is not going to be a lecture on the topic, rather it would be an interactive session. I'll be asking you guys a couple of questions, and so it won't be one-way communication, rather we'll be having a conversation together. We'll try our best to whatever extent it's possible through this medium of webinar. So I would expect all of you to participate actively, and so be ready to answer certain questions which I'll be asking in the webinar. There are a couple of ways that we will be taking your answers. So in some parts you would have to raise your hands, which you can find the button in this platform. And Muskan, who is handling the controls, will unmute you and you can speak your questions or your answer to those questions that I'll be asking. And in some activities, you can also answer on the chat box of this platform. Again, there is no right or wrong answer, so feel free to answer. And also, as far as language is concerned, you can answer your question in any language that is comfortable to you. You can answer it in Hindi or English or combination of both. Again, there is no pressure to give the right answer. It's like you have to share your ideas, your thoughts, your opinions, your understanding with us, so that collectively we can understand the topic, which is managing stress and anxiety amid COVID-19 crisis. So feel free to participate. So this you can see on the screen is the flow of today's session. So first component would be understanding mental health. Second would be to see the impact of COVID-19 on our mental health, and also to look into how we are feeling, especially in last 2 months since the lockdown has happened. Third would be ways to cope with stress during this crisis. And last would be understanding depression, anxiety, and low self-esteem. And then we will open up the platform for Q&A. Yeah, next slide, please. Okay, so this is our first activity. I'll just brief you how we are going to go about it. And again, it would be important for you to participate. What you have to do is, I'll tell you one term I will speak. And as soon as I speak that term, whatever thought or image that occurs in your mind, the first thought or the first image, you have to share with us that thought. And again, there are no right or wrong answers. As soon as I say that term, whatever first thought or image comes to your mind, you can say that. So Muskan will be saying your name and will unmute you for roughly 3 to 5 seconds, and you can tell us that thought or image that comes to your mind. So I hope it's clear. Muskan, are we ready? Yes, sir. Okay, so guys, I'll be saying the first term, and उससे related जो भी thought या image आपके mind में आए, you feel free to share that.
और मुस्कान आपका नाम लेके आपको अनम्यूट करेगी एंड यू कैन share that with us. And Shubham, who is handling the slides, will note down your answers. And then we will analyze your answers to understand better about the topic. Okay, so the first term is mental health. Again, the very first thought or image that comes to your mind, you can share that with us. So Muskan, you can go to the participant list and yeah. और ये यार ये कैसे होंगे सारे सेव शोभित I guess we have to unmute someone. Yes, Muskan, you can go ahead with. Someone has typed cognitive fitness. Yes, Muskan, you can take the name of the participant and ask them and unmute them. They can answer. सर Yeah. आयुष Yes, Ayush, you can share. Shubham, किसी ने chat में भी आंसर लिखा था. You can note that as well. Sure. Yes, Ayush. मुस्कान आयुष को अनम्यूट कर देना so that he can share his answer. अगर उसको दिख गया तो फिर सोचो उसको कैसे रोका जा सकता है। कौन को दिखेगा अरे तुम लोग इतना एडवांस कैसे होते हो तुमको पता चला? हमको दिख गया I guess we have to unmute someone. Yes, fitness of mind. Guys, you can also answer in the chat box. As I say the term mental health, what's the first thought or image that comes to your mind? हर्षा I think unmute कर दिया क्या आपने वर्षा को? यस सर Varsha, can you tell me what's the first thought or image that comes to your mind? हर्षा I think audio answers में शायद issue हो रहा है, but so guys, if you want, you can share in the chat box as well. You can type in whatever first thought or image that comes to your mind. This is open for everyone. आपका नाम नहीं भी लिया जा रहा तो भी आप chat box में type कर सकते हैं. So I can see Nishtha is there, Anjali is there, Anjalika is there. Guys, आप लोग chat box में आंसर बता सकते हैं आपके माइंड में क्या फर्स्ट थॉट आता है. अंजलि Hello. Yeah. Hello. Am Yes. I audible? Yes, you can tell us. Good evening, everyone. Am I audible, sir? Yes, you're audible, ma'am. Yeah. Everyone. It means healthy and it is fit to decide and something new. That mentally fit means cognitive is good, for my opinion. मोना
Sorry to interrupt. I guess Lake sir, you're speaking on mute, so kindly unmute yourself, please. Am I audible? Yes, you're audible, sir. Yes, participant आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. जो भी वर्ड आपके माइंड में आता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. Yes, other people, Muskan, co-host also can answer. Okay, so mental illness, absence. Good control over your emotions. Okay. Emotional adjustment. Okay, anyone else? Presence of mind. Presence of mind, yes. Okay, so moving on to next part of this activity. So I'll say another term, उससे related जो भी thought या image जो भी first आपके mind में आता है आप लोग वो share कर सकते हैं. The next term is physical health. Physical health से related जो भी thought आपके mind में आता है. Yes, आप लोग chat box में type कर सकते हैं. Disease free body. Yes, Anjali has answered. बाकी participants भी answer कर सकते हैं जो भी first thought या first image आपके mind में आता है. Fit and flexible body. Yes. Yes, any other answer? Being able to do daily work. Active body without any disease. Yes. Affects mental health too. Yes, definitely. Our body, how we feel in our body also affects our mental wellness. Okay, any more answers from the participant? And I would encourage everyone to participate, including the hosts. Whatever comes to your mind, you can answer that. Yes, any more answers? Shubham, I guess chat box में और भी एक दो answers हैं. Yes, so hello, Shubham. So far we have seen mental health में there are a couple of answers. Fitness of mind, cognitive fitness, cognitive and emotional well-being, good control over your emotions, emotional adjustment, good control over emotions, presence of mind. And physical health में we have disease-free body, fit and flexible body, daily work, affects mental health too, yes. सो गाइज अगर आप दोनों साइड्स में देखो तो आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा कि हमने दो पार्ट्स की बात की है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ. वन पार्ट इज डिजीज बी इट इन द बॉडी और इन द माइंड एंड द अदर पार्ट इज वेलनेस वेलबींग ऑफ बॉडी एंड माइंड. तो आप लोग मेंटल हेल्थ से काफी बार हमारा जो नोटेशन माइंड में आता है वो आता है बहुत ही नेगेटिव का, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का. बट मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिसऑर्डर्स और बीइंग वेरी डिप्रेस्ड, सिवियर डिप्रेशन या एंजाइटी या फिर जो कॉमन टर्म मेंटल हम यूज करते हैं. तो काफी बार ये स्टिग्मा माइंड में रहता है कि मेंटल हेल्थ इज अबाउट दोज प्रॉब्लम्स, दोज इश्यूज, एंड हेंस वी नॉट ओपनली टॉक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बॉडी में चोट लगे
तो आप क्या करते हो? क्या आप उसको छुपा देते हो उस चोट को, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो या जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो सीख करते हो? बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, जब हमें इमोशनल चोट, अगर मैं वर्ड यूज करूं, जब हमें इमोशनली कुछ बॉदर कर रहा होता है, हर्ट कर रहा होता है, तो हम काफी बार वो शेयर नहीं करते किसी के साथ। तब या फिर होता भी है तो कोई एक आधा पर्सन होता है हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में जिसके साथ हम शेयर करते हैं। इन जनरल थोड़ी शेम एसोसिएटेड होती है इमोशनल पेन के साथ, इमोशनल हर्ट के साथ, तो हम उसके बारे में ओपनली बात नहीं करते। और उसके रीजंस भी है, क्योंकि हमें फियर होता है जजमेंट का, कि लोग हमें जज करेंगे या मजाक उड़ाएंगे या हमें अलग अलग तरह के वर्ड से शेम करेंगे, तो हम फियर ऑफ जजमेंट की वजह से वो शेयर नहीं करते। और कहीं ना कहीं वो जो हर्ट होता है, और आई आई एम इमेजिनिंग कि आप लोग रिलेट भी कर पा रहे हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। हम लोग जब हमें प्रॉब्लम होती है इमोशनल लेवल पे, बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा होता है, हर्ट फील हो रहा होता है या गुस्सा आ रहा होता है, तो हम काफी बार वो बताते नहीं है किसी को। तो इट्स important to talk about mental health, to share about it. So आज at least in this session we will try to openly talk about our problems that we are facing. So with that in mind, that we have to be open about our mental health, and then only we will be able to reach the solutions. Let's move forward. Shubham, next slide. Okay, so बीच में confirm कर देना that I am audible. So anyone can confirm in the message box that I am audible to everyone. Co-host आप भी confirm कर सकते हैं if I am audible. Yes, sir. Surely, Okay. sir. Yes. So next is common feelings during the lockdown. Last 2 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ है, तो हम सब ने कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो किसी ने थोड़ी ज्यादा, किसी ने थोड़ी कम। कुछ कॉमन फीलिंग्स जो एटलीस्ट मैंने ऑब्जर्व की है लोगों से बात करके या अपने खुद के क्लाइंट से बात करके, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ आपने भी फील किए हो। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ कंट्रोल। तो अगर आप देखो तो इस टाइम पे और 2 महीने से ये चल रहा है, हर चीज को लेके काफी अनसर्टेनिटी है। और आने वाले काफी मंथ्स तक काफी अनसर्टेनिटी है कि हमारे कॉलेज कब खुलेंगे, एग्जाम्स कब होंगे, अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो उसमें उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, वुड बी वी बी एबल टू मीट आवर फ्रेंड्स प्रॉपरली, क्या हम रेस्टोरेंट में या कैफे में या जहाँ भी हम खाने पीने जाते हैं वो नॉर्मल जा पाएंगे, या फिर एक इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो हर चीज बहुत ज्यादा अनसर्टेन है आने वाले कुछ मंथ्स तक। और उस वजह से एंजाइटी फील होना या एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस कि चीजें कंट्रोल में नहीं है, वो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा कम लेवल तक, कुछ थोड़ा ज्यादा लेवल तक। और जिन लोगों को एंजाइटी का प्रॉब्लम इन जनरल भी रहता है, उनके लिए एंजाइटी और बढ़ गई है, क्योंकि अनसर्टेनिटी से ही लिंक्ड होती है एंजाइटी, जब हमें पता नहीं होता फ्यूचर में क्या आने वाला है। और अभी तो ऑलमोस्ट हर चीज अनसर्टेन है। तो ये फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ कंट्रोल हम सब शायद एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग लेवल्स पे। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं, जो अभी घर नहीं जा पाए किसी भी रीजन से। दोनों ही केस में लोनलीनेस का फैक्टर आ सकता है, क्योंकि हम रेगुलर जिन लोगों से हम मिलते थे, फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड से, जिनसे हम ओपनली शेयर कर पाते थे अपनी प्रॉब्लम्स, अब हम उनसे फिजिकली नहीं मिल पा रहे। और अगर मिल भी रहे हैं तो वीडियो पे बात हो रही है, जो कि उतना सपोर्टिव फील नहीं होता। तो काफी कॉमन है सेंस ऑफ आइसोलेशन या लोनलीनेस फील करना इस टाइम पे। एंड ऑल्सो हमें कभी कभी लगता है कि अगर हम फैमिली के साथ रह रहे हैं तो लोनलीनेस होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है फैमिली का इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है, कि इमोशंस के बारे में लोग आपस में शेयर करते हैं या नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि आप फैमिली के साथ हो तो आपको लोनली फील नहीं होगा। तो ये लोनलीनेस भी इस टाइम पे काफी कॉमन हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एक पार्ट पे तो हमने बात की लोनलीनेस की, बट काफी बार क्योंकि हम में से काफी लोग फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, तो लोनलीनेस का ऑपोजिट भी हो सकता है कि हमें फैमिली में रह रहे हैं और हमें पर्सनल स्पेस उतना ना मिल पा रहा हो। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी बाहर रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, पीजी में रहते थे या घर से दूर रह रहे थे, तो काफी बार फैमिली में आने के बाद हमें कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि उतना पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम अगेन, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि स्ट्रेस लेवल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, सैडनेस लोनलीनेस की फीलिंग्स भी ज़्यादा है। तो एक सपोर्ट एक दूसरे से जो हम सीख करते हैं, जो पहले हम बाहर एक फ्रेंड से मिलके या ऐसे लोगों से मिलके शेयर करते थे, वो अब कंपैरेटिवली उतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर जाने पे रिस्ट्रिक्शन है और वीडियो पे भी आप एक लेवल तक ही सपोर्ट सीख कर सकते हो। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेल्थ एंजाइटी, ये ऑलमोस्ट हम सब फेस कर रहे हैं। हेल्थ एंजाइटी फॉर एग्जांपल, जब भी आप बाहर सामान लेने जाते हो तो माइंड में एक एंजाइटी रहती है कि कहीं कुछ मैं टच ना कर लूँ, या आसपास कोई मेरे आसपास तो नहीं है, या सामान मैं ढंग से छू रहा हूँ, वापस आके हाथ धो रहा हूँ या नहीं, सैनिटाइजर यूज कर रहा हूँ या नहीं। तो एक लेवल पे तो हेल्थ एंजाइटी अपने बारे में होती है, और आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप बाहर जाते हैं, बाहर भी होती है, वापस आने के बाद भी थोड़ी देर तक रहती है कि कहीं कोरोना वायरस ना हो गया हो। सिमिलरली हमें अपने लव्ड वंस के लिए भी हेल्थ एंजाइटी होती है। आपने अपनी फैमिलीज में नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, या आप गुस्सा आ जाता है या पेरेंट्स को आप पे, कि आप ढंग से ध्यान नहीं रख रहे, या बाहर ऐसे ही चले जा रहे हो, या ज्यादा बाहर मत जाओ। तो वो हेल्थ एंजाइटी हमें अपने लिए भी फील होती है और अपने लव्ड वंस के लिए भी। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट इज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। ऑल्दो अभी कोरोना की वजह से एंजाइटी या स्ट्रेस हम लोगों का बढ़ा है, लेकिन उसी के ही इम्पैक्ट से हमारा एक टेंडेंसी होती है बहुत जल्दी एंगर या फ्रस्ट्रेटेड फील करने की, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, एजिटेशन होना, जिसकी वजह से शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया हो, जो कि मेरे क्लाइंट्स में तो मैंने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया है कि फैमिली इश्यूज कंपैरेटिवली बढ़ गए हैं। फैमिलीज के बीच में, जो फैमिली में आपस में छोटी मोटी बातों पे बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, नाराज हो जाते हैं हम एक दूसरे से, सो दैट दोज फीलिंग्स हैव इंक्रीज्ड कंपैरेटिवली, बिकॉज everyone is already little stressed and little anxious about the whole situation, और वो कभी कभी गुस्से की फॉर्म में भी बाहर आ जाता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एंजाइटी फील हो रही है, अनसर्टेनिटी बहुत है। तो अगर आप देखो इस लूप में, फर्स्ट इज वांट इंफॉर्मेशन, वी वांट इंफॉर्मेशन कि सिचुएशन है कैसी, टू रिड्यूस आर एंजाइटी, विच इज द सेकंड स्टेप, कि एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं। यस, सो किसी ने हैंड रेज किया है, तो वी विल कम बैक टू इट। सो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, कि बाहर हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कब लॉकडाउन खुलेगा, हम न्यूज़ देख रहे हैं बार बार, या सिचुएशन कितनी है, नंबर्स कितने हो गए। तो हमें लगता है हम न्यूज़ देखेंगे तो हमें सेंस ऑफ कंट्रोल फील होगा, बट होता क्या है, जब न्यूज़ हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से देखते हैं, तो वो न्यूज़ हमें न्यूज़ चैनल से भी मिलती है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर व्हाट्सएप पे भी काफ़ी फेक न्यूज़ भी चलती है। तो जब हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म से न्यूज़ मिलती है, और काफ़ी बार न्यूज़ कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, एक तरफ सपोज कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है कि कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, अब इसके साथ जीना सीख लो, साथ में नंबर्स हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज़ हमें मिलती है और हमें समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो रादर देन न्यूज़ से हमारी एंग्जाइटी कम हो, वो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है, और जब एंग्जाइटी और बढ़ती है तो हमें लगता है हमें और न्यूज़ चाहिए, और ज़्यादा न्यूज़ देखनी है या सोशल मीडिया पे पढ़ना है, तो उससे एंग्जाइटी और बढ़ती है। तो हम इस लूप में फंस जाते हैं कि न्यूज़ देखते हैं एंग्जाइटी कम करने के लिए, इन रिटर्न एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो गाइस, इससे पहले की स्लाइड्स में अभी तक हमने कुछ कॉमन फीलिंग्स देखी, जो शायद अलग अलग लेवल्स पे हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस क्राइसिस के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि आपको क्या हेल्प कर रहा है इस तरह की या किसी और भी तरह की फीलिंग जो आपने एक्सपीरियंस की हो पिछले 2 महीने में, कि आप ऐसा क्या करते हो स्ट्रेस से डील करने के लिए जो आपको हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट में भी आंसर कर सकते हो, यस, वॉचिंग मूवीज एंड सीरीज, बाकी लोग भी बता सकते हैं, या फिर अगर कोई वर्बली आंसर करना चाहता है तो वो हैंड रेज भी कर सकता है, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। यस, मुस्कान राघव को अनम्यूट कर दीजिए, उसने हैंड रेज किया है, लिसनिंग टू म्यूजिक। मुस्कान, यस सर। राघव ने हैंड रेज किया था, उन्हें आप अनम्यूट कर सकते हैं।
राघव का आंसर है ऑनलाइन कोर्सेज। ओके Sir, there is network issue. Let it be in chat. ओके, हम फिर चैट पे एक बार बाकी लोग भी अपने आंसर शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। मैं कुछ आंसर्स आपके लिए पढ़ देता हूँ। वॉचिंग मूवीज एंड सीरीज, लिसनिंग टू म्यूजिक, टू टॉक, कुकिंग। डेफिनेटली कुकिंग से, कुकिंग भी काफ़ी क्रिएटिव होता है, तो काफ़ी बार हमें लगता है कि खाना कौन बनाएगा, मतलब यह हमारा रोल नहीं है, बट कुकिंग से भी काफ़ी स्ट्रेस रिलीज होता है बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग। ऑनलाइन कोर्सेज टू बी प्रोडक्टिव, कीपिंग माई सेल्फ बिजी बाय डूइंग वेरियस इंटर्नशिप्स। ओके, busy in the workshops and webinars, drawing, work from home internship, study. Yes, बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं। Keeping myself busy with internships. Okay. तो सब लोग अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं टू कीप देमसेल्फ एंगेज्ड। और भी कोई आंसर करना चाहता है ये, या फिर मल्टीपल आंसर्स भी आप लोग कर सकते हो, जो भी चीजें आपको हेल्प कर रही है स्ट्रेस से डील करने में इस लॉकडाउन के पीरियड में। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? ओके, ठीक है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब इस पॉइंट पे, बिकॉज ये वेबिनार बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो लिमिटेड टाइम में हम दो ऑप्शन कर सकते हैं। एक, क्योंकि आप लोगों ने रजिस्टर किया है इस वेबिनार के लिए, तो हो सकता है आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो इन जनरल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या फिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो लॉकडाउन के ड्यूरिंग स्ट्रेस या एंजाइटी से रिलेटेड। तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम वो क्वेश्चन आंसर आपके ले सकते हैं, और मैं अपने अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हमने कुछ आगे की स्लाइड्स पे कुछ वेज मेंशन किए हैं कोप करने के लिए एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ। तो आई थिंक मैं ऑडियंस और पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो कि पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम आपके क्वेश्चन ले और उन्हें आंसर करें, या फिर हम आगे की स्लाइड्स पे चले जिस पे वेज टू कोप विद स्ट्रेस और एंजाइटी पे हम बात करेंगे। तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो आप क्या चाहते हो, अभी Q&A करना चाहते हो या फिर आगे की स्लाइड्स पे जाना चाहते हो? गाइस चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं वेज टू कोप विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बता सकते हैं कि अगर अभी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर आगे की स्लाइड पे जाना चाहते हो। Yes, I can see there are many participants. आप लोग चैट पे बता सकते हो ways to cope with anxiety. ओके, तो हमें कुछ लोगों का तो मैसेज आया है कि हमें आगे की स्लाइड्स पे चलना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड्स, ways to cope. ओके, तो आई थिंक यही करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मल्टीपल पीपल आर आस्किंग, तो शुभम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। So our title is ways to cope with stress and anxiety during the lockdown. तो हो सकता है ये आपने दिस इज द फर्स्ट सजेशन या टिप आप समझ सकते हो, फॉलो अ रूटीन। लेकिन ये हमने काफी सुना होगा पिछले 2 मंथ्स में। किसी यूट्यूबर ने बोला कि रूटीन फॉलो करो, किसी सेलिब्रिटी ने बोला रूटीन फॉलो करो, प्रोडक्टिव रहो। काफी लोगों ने ये सजेशन हमें दिया, लेकिन क्या हम ये रूटीन फॉलो कर पा रहे हैं? और आप लोग चैट में आंसर भी कर सकते हो सो दैट ये इंटरेक्टिव रहे। क्या आप लोग रूटीन फॉलो कर पा रहे हो या बहुत अच्छे से प्लान कर पा रहे हो? नो नो नो, काफी लोगों का नो आ गया एक साथ। तो ये सजेशन तो है, नॉट एग्जैक्टली ये सजेशन तो हमने काफी सुना कि रूटीन फॉलो करो, लेकिन और जो शायद हेल्पफुल हो भी सकता है, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर मिस कर जाते हैं जो शायद काफी लोग बात नहीं करते, कि ये टाइम कि हमें घर में रहना है सारा दिन और चीजें हम लोगों से भी नहीं मिल पा रहे, फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, तो इन सब की वजह से स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, सैड फील करना, लोनली फील करना, इन सब फीलिंग्स का होना वेरी नेचुरल है। किसी ने बोला आई वेक अप लेट एंड माय डे इज अनप्रोडक्टिव आफ्टर दैट। डेफिनेटली स्लीपिंग इश्यूज भी बहुत लोगों को हो रहे हैं, सोने का जागने का टाइम नहीं है, वी आर वेस्टिंग टाइम इन वॉचिंग मूवीज सीरीज एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड व्हेन वी थिंक अबाउट एग्जाम्स। तो अब किसी ने तो बोल दिया कि रूटीन फॉलो करो, लेकिन
अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि इस टाइम पे फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स का राइज होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि ये क्राइसिस हमने, हमारी जनरेशन ने, इवन हमसे ऊपर की जनरेशन ने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। तो ये अनयूजुअल सिचुएशन है, तो हमारी फीलिंग्स भी अनयूजुअल होंगी। नेगेटिव फीलिंग, स्ट्रेस होना बहुत कॉमन है। तो आई थिंक मेरा सजेशन ये होगा कि आप रूटीन फॉलो करो, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और रात को सोने से पहले नेक्स्ट दिन का, डे का टू डू लिस्ट भी बना सकते हो, काफी इफेक्टिव होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस भी उसके साथ हो। एक्सेप्टेंस के अगर रूटीन मैं उतना जितना मैंने बनाया है कि मुझे ये करना है, मैं नहीं भी कर पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट आई शुड एक्सेप्ट अगर वो नहीं भी फॉलो हो रहा। मैंने डिसाइड किया कि मैं इतने बजे उठूंगा, अगर नहीं भी उठ पा रहा तो बहुत ज्यादा खुद पे हार्श होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज टाइम्स आर सच कि नेगेटिव फीलिंग्स काफी ज्यादा है। तो रूटीन फॉलो ना हो पाए ऐसा होगा भी, और रूटीन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दिस इज फर्स्ट सजेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी, जैसे काफी लोग अभी घर पे ही हैं, तो हम लोग घर पे अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, पजामा पहन लिया, टी शर्ट पहन ली, शॉर्ट्स पहन ली, और रिलैक्सिंग कपड़े होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि घर पे आप तसल्ली से बैठो। बट मेरा एक सजेशन रहेगा जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, कि जब भी आप कुछ काम करने के लिए बैठ रहे हो या पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, तो सजेशन मेरा ये है कि आप वैसे कपड़े पहनो जो आप वर्क प्लेस पे या कॉलेज में या जब भी क्लासेस के लिए जाते हो तब पहनते हो। और आई डोंट नो हम कि आप में से कितने लोग ये फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप मैसेज में बता सकते हैं। और इससे एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि उस टाइम पे फिर प्रोडक्टिविटी आपकी ऑलरेडी अच्छी हो जाती है, बिकॉज माइंडसेट पूरा शिफ्ट हो जाता है व्हेन यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स जो आप बाहर जाते टाइम पहनते हो, या क्लास जाते टाइम, या अपने वर्क प्लेस पे जाते टाइम पहनते हो। क्योंकि माइंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमने क्या पहना हुआ है, हम कैसा फील कर रहे हैं। तो ड्रेसिंग प्रॉपरली व्हेन यू आर वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग मैसेज में भी बता सकते हैं मुझे अगर किसी ने ऑलरेडी ट्राई किया है, या फिर अगर ये आप करना चाहते हो आगे ट्राई। नो कैजुअल ड्रेसेस बीइंग यूज्ड दीस डेज। ओके, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और आप लोग अपने मैसेजेस बीच में हमें भेज सकते हो। यस, नेक्स्ट स्लाइड। और अगेन रिलेटेड टू द सेम थिंग, कि अब हम घर पे हैं तो हमें काफी बार होता है कि हम कहीं भी बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं या काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग काम करने के लिए या पढ़ने के लिए एक अलग स्पेस बना दो। हो सकता है वो टेबल चेयर वहां पे आपने रखा है, या फिर नॉर्मल कुछ बिछा के बैठे हो, लेकिन वो स्पेस आपके बाकी स्पेस के, आपके रिलैक्स करने के, सोने के, इंजॉय करने के उन स्पेसेस से अलग होना चाहिए, सो दैट आपका माइंडसेट वैसा हो कि आप उस जगह पे ही पढ़ने के लिए बैठ रहे हो या काम करने के लिए बैठ रहे हो। सो दैट इज अ सजेशन विच आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बीच में थोड़ा शोर आ रहा है, तो आई गेस किसी को म्यूट करना होगा। मुस्कान, आप देख लेना। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। तो अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला, दीज आर अनयूजुअल टाइम्स। ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह का लॉकडाउन जहाँ सब कुछ बंद है। तो इट इज हमारे फीलिंग के रिएक्शंस भी अनयूजुअल ही होंगे। स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फियर होना, फ्रस्ट्रेशन होना, लोनली फील करना, दीज आर वेरी नेचुरल फीलिंग्स जो अलग अलग एक्सटेंट पे अलग अलग लोगों को फील हो सकती है। तो माई सजेशन इज, रादर देन ओवर थिंकिंग अबाउट दीज फीलिंग्स कि मुझे ये क्यों फील हो रहा है, और रादर देन फाइटिंग विद दीज फीलिंग्स कि मुझे इन फीलिंग्स को हटाना है, आप फर्स्ट स्टेप ये रखो कि एक्सेप्ट करो कि ऐसा तो फील होगा शायद इस टाइम पे, इट इज वेरी नेचुरल टू फील दिस वे। एंड अगेन आप जब ये करोगे, एक्सेप्ट करोगे अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि काफी बार हम बड़े ही ये सुन सुन के होते हैं कि नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात मत करो, नेगेटिव इमोशंस बुरे होते हैं। तो प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ में, और ये मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम नेगेटिव फीलिंग्स से लड़ना शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि वो फीलिंग्स ना हो। जैसे हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, ये हमारे सिस्टम का पार्ट है, साइकोलॉजिकल सिस्टम का, वैसे ही नेगेटिव फीलिंग्स भी आर पार्ट ऑफ सिस्टम। जब सिचुएशन एक तरह की होती है तो फीलिंग्स आना नेचुरल है। अगर हम उन फीलिंग्स पे लड़ेंगे या खुद को जज करेंगे या आसपास वालों को जज करेंगे, तो हम अपने लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, जिस वजह से और ज्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है।
तो माय सजेशन वुड बी कि एटलीस्ट लॉकडाउन के टाइम पे, वैसे तो ये जनरल भी मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ, बट एटलीस्ट लॉकडाउन के टाइम पे हैव सम एक्सेप्टेंस के इस तरह के नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स हो सकते हैं. यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और अगेन फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज जर्नलिंग, जिसको आप डायरी एंट्री भी बोल सकते हो. सो दिस इज अबाउट कि आप दिन में ज्यादा नहीं 5 to 10 minutes यू कैन राइट डाउन योर थॉट्स. अगेन ये दो दो जगह पे आप कर सकते हो, या तो रात को सोने से पहले या फिर दिन भर में जब भी आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है या सैडनेस फील हो रहा है या लोनलीनेस फील हो रहा है या लो फील कर रहे हो, उस टाइम पे जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं वो आप एक डायरी में लिख लो, एक जर्नल में लिख लो. एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करो 5 to 10 minutes अ डे. अब ये क्यों हेल्प करेगा इसका भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ. अगर आप देखो तो आप काफी बार हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, तो काफी बार टाइम का ही नहीं पता चलता, ओवर थिंक हम करते रहते हैं. आप 4 घंटे तक ओवर थिंक कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको कि 4 घंटे तक जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखते रहो, आप नहीं लिख पाओगे. विद इन फ्यू मिनट्स आप देखोगे थॉट्स रिपीट होने शुरू हो गए. आपने डायरी में लिखे और अब सेम ही थॉट दोबारा आ रहे हैं. तो माइंड के लेवल पे जब हम थॉट्स को सोचते हैं तो वो रुकता नहीं है, वो रिपीट लेवल पे वरी जो है हमारा, वो थॉट चलता रहता है चलता रहता है. बट जब आप उसे डायरी में लिख देते हो तो वो इन अ वे कंसोलिडेट हो जाता है, आपको सामने दिख जाता है. वो आपके माइंड से हटके ऑन पेपर में आपको आपके सामने दिख जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता है आपके थॉट और आपके बीच में. तो ये काफी हेल्प करता है. हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी करते भी हो, तो अगर ऐसा है तो आप लोग शेयर कर सकते हो मैसेज में. एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू 5 to 10 टेक आउट 5 to 10 minutes टू राइट डाउन इन अ डायरी. अपने थॉट्स को डेली एक डायरी में लिखो, एंड लेटर ऑन आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा. यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यस, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अलग अलग तरह की मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं. तो दो चीजें मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से जो काफी साइंटिफिकली प्रूवन भी है. अगर कुछ लोग लेट्स से मेडिटेशन को अनसाइंटिफिक मांगते हैं, तो दीज आर सर्टेन साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी रेफर करता हूँ. वन इज रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कि ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा JPMR, इसका फुल फॉर्म है जेकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. ये टेक्निक होती है, बॉडी और माइंड आपस में लिंक्ड होते हैं. जब आप मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं तो माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाता है, और माइंड जब स्ट्रेस्ड होता है तो मसल्स भी टाइट हो जाती है. तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है. आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो JPMR, और आपको अपने आप कुछ लिंक्स इनिशियली मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके अलावा ये 10 to 15 मिनट्स का एक्सरसाइज है. इसके अलावा माइंडफुलनेस का हो सकता है आप में से कुछ ने नाम सुना हो. तो माइंडफुलनेस इज अ टेक्निक जो बुद्धिस्ट कल्चर से वर्ल्ड में काफी फेमस हुई है, वेस्टर्न कल्चर में अभी काफी ज्यादा फेमस है, और काफी सारे कॉर्पोरेट्स भी इसे यूज करते हैं. तो माइंडफुलनेस के लिए वन ऑफ द एप्लीकेशंस इज हेडस्पेस, जिसमें आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. 10 मॉड्यूल्स का सेट है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अगेन दो टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा, या तो रात को सोने से पहले आप इन रिलैक्सेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जब भी आपको कुछ बॉदर कर रहा हो, जब भी आपका मूड ऑफ हो, एंग्शियस फील हो रहा हो, स्ट्रेस फील हो रहा हो, तब आप इन दोनों में से एक प्रैक्टिस कर सकते हो डेली. अगेन 10 to 15 मिनट्स. यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेफ्रेन फ्रॉम मेकिंग बिग डिसीजंस. अब जैसे हमने देखा कि इस टाइम पे काफी सारी फीलिंग्स ऑलरेडी क्लाउडेड है. एंजाइटी है, स्ट्रेस है, एजिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है. तो तो माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. थोड़ी बहुत फीलिंग्स आप सबने नोटिस किया होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आती रहती है, स्पेशली इस टाइम पे. तो अगेन मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, ये टाइम जो है हर चीज अनसर्टेन है, और ऐसे टाइम पे आप सर्टेन प्लान्स बनाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत क्लियरली डिसीजन ना ले पाओ, स्पेशली जो बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के, जैसे कि मुझे करियर में क्या करना है, मुझे कौन सी जॉब लेनी है, या फिर काफी बार इंटरपर्सनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप्स में भी ऐसे बड़े डिसीजंस होते हैं. अगेन हो सकता है आपकी एज में कुछ लोगों का ब्रेकअप पैचअप चल रहा हो, तो इस टाइम पे बड़े डिसीजंस मत लो. इफ पॉसिबल करियर या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजंस आप कुछ मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दो. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली। और अगेन आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आप में से काफी लोग स्लीपिंग इश्यूज फेस कर रहे हो, कि स्लीपिंग आवर आपका कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, वो काफी अलग हो चुका है या थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है उसमें, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि ये काफी कॉमन हो रहा है। पार्टिसिपेंट्स आप मुझे मैसेज पे बता सकते हो। तो ये हम में से काफी लोग, इवन मैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी ये फेस करता हूँ कि काफी बार सोने का टाइम और उठने का टाइम पहले के कंपैरिजन में उतना कंट्रोल नहीं रहा है उस पे। इसके लिए एक सजेशन मेरा रहेगा कि जब भी आप सोने के लिए जाते हो, नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, ट्रू, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी जनरेशन ही नहीं, हमसे ऊपर वाली जनरेशन भी फेस कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब भी सोने का आपने डिसाइड किया कि मुझे इतने बजे सोना है, नो साउंड स्लीप, यस, पवन ने कमेंट किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप डिसाइड करो कि मुझे इतने बजे सोना है, मैं ये तो कमेंट नहीं करूंगा कि आप 9 बजे सो, 12 बजे सो, रात को 3 बजे सो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि आई नो वन टू कमेंट ऑन दैट। बट ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सो रहे हो, मेक श्योर 15 मिनट पहले, मतलब सोने के टाइम से 15 मिनट पहले आप स्क्रीन टाइम अपना 0 कर दो। मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन मत देखो। इसका रीजन क्या है, जब आप स्क्रीन देख रहे होते हो तो आपका माइंड स्टिमुलेट होता रहता है, क्योंकि स्क्रीन पे स्पेशली सोशल मीडिया या वीडियो से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और माइंड उससे रादर देन रिलैक्स होने की तरफ जाए, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद आप सोचते हो कि यार नींद नहीं आ रही, फिर आप करवटें बदलते हो, फिर आप सोचते हो चलो मोबाइल पे कुछ देख लेता हूँ, फिर आप मोबाइल पे कुछ देखते हो, माइंड फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे और नींद नहीं आती। फिर करते करते टाइम बीत जाता है, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप में से कुछ लोग जरूर रिलेट कर पा रहे होगे। तो जब भी स्क्रीन टाइम अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे माइंड स्टिमुलेट हो जाता है रादर देन रिलैक्स करने की जगह। तो मैं नहीं बोलूंगा दिन में आप कैसे यूज करो स्क्रीन, वो आपकी चॉइस है, बट रात को सोने से 15 मिनट पहले what you can do is आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो एंड रादर प्रैक्टिस समथिंग विच इज रिलैक्सिंग। जैसे 2 सजेशंस मैंने दिए, रिलैक्सेशन टेक्निक एंड माइंडफुलनेस, एंड आप खुद देखोगे आपकी स्लीप की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, सो मैंने इसको इंटेंशनली नाम ये दिया है पॉकेट्स ऑफ जॉय। डू समथिंग विच इज enjoyable टू यू, एंड नॉट जस्ट फॉर प्लेजरेबल बट enjoyable। जॉय और प्लेजर में काफी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज अपने लिए एक अच्छी चाय या कॉफी बनाना। इट कुड बी एज सिंपल एज कि थोड़ा सा कुछ पेंट कर लिया, थोड़ा सा थोड़ा सा सिंग कर लिया, एनीथिंग क्रिएटिव दैट मेक्स यू फील जॉयफुल। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा सिंग कर लिया या स्केच कर लिया, पेंट कर लिया, कुछ पोयम लिख ली, छोटी छोटी चीजें। और ये अगेन मैं तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अपने लिए देखना है व्हाट आर योर पैकेट्स ऑफ जॉय। आपके लिए वो छोटी छोटी चीजें क्या है जो आपको जॉय देती है। तो मेक श्योर आप दिन में ऐसी चीजें जरूर करो। हो सकता है आपको मजा वीडियोस देखने में भी आता हो, एंटरटेनमेंट के जो चैनल्स आजकल हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बट प्लेजर और जॉय में हमें डिफरेंस समझना होगा। जॉय इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, विच इज आवर वेरी पर्सनल स्पेस, जिसे हम हॉबीज भी बोलते हैं। तो मेक श्योर यू फाइंड आउट दैट एंजॉयबल टाइम विद योर हॉबीज ऑलमोस्ट एवरी डे। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके गाइस, सो वी हैव 6:46 हो गया, सो वी हैव सम मोर टाइम। तो मैंने अभी तक का अगर रैप अप करूं तो आई टॉक्ड अबाउट कपल ऑफ फीलिंग्स जो हम सब शेयर कर रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम में। कुछ नेगेटिव फीलिंग्स बहुत नेचुरल हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन सजेशंस व्हिच आई गिव। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, मैं वी कैन गो अहेड टिल 7:30 अगर ओके, सो वी कैन एक्सटेंड द सेशन एज वेल अगर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो गाइज नाउ ऑनवर्ड्स, नाउ इट्स अप टू यू, सेशन कितना लंबा जाएगा। आप लोग जो भी कैसा भी क्वेश्चन आपके माइंड में अभी सेशन की वजह से आया हो या सेशन से पहले भी आपके माइंड में चल रहा हो, पिछले 2 मंथ्स में लॉकडाउन के टाइम पे या फिर अदरवाइज भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन जो आप चाहते हैं मुझे आंसर करना, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। हाउ टू कंट्रोल थॉट्स, यस, बाकी लोग भी अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, फिर हम लोग एक एक करके उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, यस यस, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, लॉकडाउन से रिलेटेड, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस से रिलेटेड।
how can to know if what I'm suffering through is anxiety or depression? Okay. Yes, guys, और questions जो भी आपके mind में आ रहे हो, आप लोग send कर सकते हो. How to stop thinking about broken friendships and move on. Yes, बाकी questions भी भेजते रहो, फिर एक एक करके हम इन questions पे बात करेंगे. How to overcome procrastination? Okay. Yes, guys, और questions? कैसे भी mental health, emotions, thoughts, negative thinking, लॉकडाउन, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस. यस, एनी मोर क्वेश्चंस? तो मैं यहाँ से चैट बॉक्स खोल लेता हूँ एंड वी विल स्टार्ट आंसरिंग दोस क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल थॉट्स. तो अगेन मैं अपना पर्सपेक्टिव इस पे बताऊंगा कि ऑल्दो हम सबने काफी बार सोचा भी होगा, सुना भी होगा कि मुझे बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे कंट्रोल करने हैं अपने थॉट्स. तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट करूंगा कि आप जितना ज्यादा थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही वो थॉट्स और आएंगे. और ये शायद आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा. आप किसी चीज के बारे में कोशिश करोगे मैं इस बारे में ना सोचूं, और वही थॉट आपके माइंड में बार बार आना शुरू हो जाता है. तो अगेन फर्स्ट आंसर तो ये है कि थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. थॉट्स इज लाइक फ्लो ऑफ समथिंग. थॉट्स रुक नहीं सकते कभी भी. थॉट्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है. उसके लिए मैं आगे बता देता हूँ कि रादर देन फोकसिंग ऑन थॉट्स को रोकने में, क्योंकि थॉट्स 10 तरह के आ सकते हैं, बट अगर आप फीलिंग्स पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप थॉट्स के लेवल पे छोड़ दो, फीलिंग्स पे आ जाओ कि मुझे फील क्या हो रहा है. ये क्वेश्चन खुद से पूछो. थॉट्स शायद बहुत तरह के आ रहे होंगे. सपोज अगर मुझे एंग्शियस फील हो रहा है तो मैं 10 चीजों के बारे में एंग्शियस हो सकता हूँ, ओवरथिंक 10 चीजों के बारे में कर सकता हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स, जब आप फीलिंग्स को एड्रेस करते हो तो फीलिंग्स यूजुअली एक ही होती है. गुस्सा आ रहा है किसी पे तो थॉट्स बहुत सारे आ जाएंगे, बट फीलिंग एक ही है कि उस टाइम पे गुस्सा आ रहा है. किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है, वरी हो रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो हम 10 तरह के सिनेरियो सोच लेंगे, लेकिन फीलिंग्स एक ही होगी. स्ट्रेस हो रहा है या सैड फील हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा अगर आप थॉट्स के लेवल से छोड़ के फीलिंग्स के लेवल पे अगर इसको एड्रेस करो. और फीलिंग्स पे के लेवल पे एड्रेस करने का क्या मीनिंग है कि जो भी आपको फील हो रहा है उस फीलिंग को रादर देन उससे लड़ने की जगह पहले तो क्वेश्चन पूछो वो फीलिंग है क्या, उसको वर्बलाइज करो, उसको एक नाम दो. क्या गुस्सा आ रहा है, क्या सैड फील हो रहा है, क्या एंग्जाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, सैड फील हो रहा है, मीनिंगलेस फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है. बहुत सारी फीलिंग्स होती है. पहले तो कोशिश करो उस फीलिंग को नाम दो. उसके बाद सजेशन ये होगा कि उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो कि मुझे ये फील हो रहा है. फिर टॉक टू समवन अबाउट दैट फीलिंग. किसी से शेयर करो वो फीलिंग के बारे में. दैट इज वन. सेकेंड वुड बी, तो आप ये तो समझ गए ना कि थॉट्स के लेवल पे हम एड्रेस नहीं करेंगे, हम फीलिंग्स के लेवल पे एड्रेस करेंगे. कि आप उन फीलिंग्स को किसी से शेयर करो या फिर किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म के थ्रू उस फीलिंग को एक्सप्रेस करो. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी जब आप उन फीलिंग्स के पास जाओगे, उन्हें एक्सेप्ट करोगे, तो हो सकता है रोना भी आ जाए. एंड इट इज वेरी हेल्दी टू क्राई. रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. काफी बार हम सोसाइटी में जब देखते हैं तो रोने से रिलेटेड भी काफी शेम एसोसिएट हो जाता है. तो जब आप फीलिंग्स को एड्रेस करना शुरू कर दोगे, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप सपोज कभी कभी रोना आता है और आप रो लेते हो तो बहुत लाइट फील होता है. फिर ओवर थिंकिंग भी रुक जाती है कुछ टाइम के लिए. तो अगेन हम कर क्या रहे हैं उस प्रोसेस में, हम अपनी फीलिंग्स को जगह दे रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं. इवन अगर आप देखो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फीलिंग शेयर हो जाती है. तो अगेन माय आंसर वुड बी रादर देन फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग थॉट्स, आप फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, एक्सप्रेस करो और लोगों से शेयर करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. सेम आंसर. ओवर थिंकिंग को रोका नहीं जा सकता, हम फीलिंग्स को एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग इज मोस्टली अबाउट वन और टू फीलिंग्स जो हमें वो फील हो रहा है. एक और कंपोनेंट फीलिंग्स का होता है, फीलिंग्स हमेशा बॉडी में एग्जिस्ट करती है. जब भी आपको कुछ ओवर थिंकिंग हो रहा है ना, आप अपनी बॉडी में को थोड़ा अटेंड करना कि बॉडी में कहीं पे कुछ स्पेसिफिक सेंसेशन है,
तो आप ऑब्जर्व करोगे, हो सकता है चेस्ट में हैवीनेस हो, हाथों पैरों में थोड़ी सी क्लमजीनेस हो, थोड़ी रेस्टलेसनेस हो, या फिर स्टमक में कुछ फील हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो। तो जो फीलिंग्स होती है वो हमेशा बॉडी में फिजिकल फॉर्म में भी हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो अगेन फोकसिंग ऑन द फीलिंग एंड देन एक्सप्रेसिंग इट इज वेरी हेल्पफुल। कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो तो फिर हम प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। हाउ टू नो इफ आई एम सफरिंग थ्रू एंजाइटी और डिप्रेशन? तो इसका डायग्नोसिस तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, बट अगर आप लोग आने वाले टाइम में इसी स्लाइड्स में ही मेरे पास डिप्रेशन और एंजाइटी के साइंस एंड सिम्टम्स भी है, तो वो मैं आप लोगों से एंड में शेयर कर दूंगा। तो वहां से आप देख सकते हो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के, अगेन मैं ये जरूर बोलूंगा कि खुद से डायग्नोस मत करो, वो डायग्नोसिस तो एक प्रोफेशनल ही करेगा। बट वो सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स से आपको रफ आइडिया लग सकता है कि एंजाइटी या डिप्रेशन होता क्या है। निष्ठा ने पूछा है हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट ब्रोकन फ्रेंडशिप एंड मूव ऑन। यस, काफी बार फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं और वो हर्ट या वो सेंस ऑफ लॉस या वो ग्रीफ हमारे साथ रह जाता है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा कि अगेन जो हमें फील हुआ है वो फ्रेंडशिप लेट्स से हमारे लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट अब का एक सेंस ऑफ लॉस है कि वो पर्सन हमारी लाइफ से चला गया। एक तो होता है कि किसी कुछ फाइट हुई और फ्रेंडशिप एंड हो गई, या रिलेशनशिप एंड हो गया, या ब्रेकअप हो गया, वहां से भी एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ रिलेशनशिप आता है। बट सेम फीलिंग हमें अगर किसी की डेथ हो जाए तो भी आती है। एक पर्सन हमारी लाइफ से चला गया, चाहे वो डेथ की वजह से गया या किसी और रीजन की वजह से वो फ्रेंडशिप या वो रिलेशनशिप एंड हो गया। अब मूव ऑन करने का सिर्फ एक तरीका है, टू ग्रीव ओवर इट। जो फीलिंग ऑफ ग्रीफ होता है कि वो लॉस या ग्रीफ को फील कर पाना, एक्सप्रेस कर पाना, और वो सपोर्ट एक दूसरे से सीख कर पाना, जो भी अभी आपके लाइफ में है। जब तक आप उस फीलिंग से नहीं गुजरोगे, जो सेंस ऑफ लॉस और ग्रीफ की फीलिंग है, मूव ऑन होना मुश्किल है। काफी बार हम सोचते हैं रिलेशनशिप एंड हो गया, अब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे वो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट था। तो वो फीलिंग को अगेन एक्सप्रेस कर पाना, शेयर कर पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार आप वो, और आप पढ़ भी सकते हो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के बारे में, इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। ग्रीफ की स्टेजेस होती है, जब आप उन स्टेजेस से गुजरते हो और अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करते हो, धीरे धीरे फिर आप मूव ऑन करना शुरू कर जाते हो। तो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मैसेज में टाइप कर सकते हो। यस, नेक्स्ट वरुण ने पूछा है हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा प्रोक्रास्टिनेशन, क्योंकि मेरे भी काफी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और उनका प्रेजेंटिंग जो कंप्लेंट होता है वो प्रोक्रास्टिनेशन का होता है। लेकिन हमेशा जब भी मैं वो प्रोक्रास्टिनेशन को एक्सप्लोर करता हूँ तो उसके अंडरलाइन बहुत सारी चीजें और होती है। इट इज नॉट जस्ट कि मैं लेजी हूँ या मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। बहुत सारी अलग अलग तरह की फीलिंग्स वहाँ पे होती है जिसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब वरुण, पहले तो आपको ये खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाई एम आई प्रोक्रास्टिनेटिंग? इट इज नॉट जस्ट लेजीनेस या फिर मैं प्रोक्रास्टिनेटर ही हूँ। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या और रीजंस हो सकते हैं। क्या मेरी पर्सनल इंटरपर्सनल लाइफ में कुछ बॉदर कर रहा है, क्या मुझे फ्यूचर से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कुछ बॉदर कर रहा है, जिस वजह से मैं जो काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें अभी अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद क्या प्रॉब्लम निकल के आती है, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। नेक्स्ट इज व्हाई इज मेंटल इलनेस नॉट कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट एज फिजिकल इलनेस? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंटल इलनेस को हमें उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। आई थिंक इसके दो रीजंस हैं। एक तो स्टिग्मा बहुत ज्यादा है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, हम अपनी ही बात करें, हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है? क्योंकि रियलिटी इज, और ये WHO के स्टैट्स है, कि अगर सिर्फ डिप्रेशन की बात की जाए विच इज वन ऑफ द मेंटल इलनेस, every Indian is bound to go through at least mild depression at least once in their lifetime, 1 in every 5। तो हर 5 में से एक इंसान लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन से जरूर गुजरेगा। लेकिन क्या हम खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा शेम एसोसिएटेड होता है। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, अगर पैर में चोट लगी है
तो मैं डॉक्टर के पास फटाफट से जाऊंगा, या मैं अपने आसपास वालों को बताऊंगा यार चोट लग गई। लेकिन अगर मुझे इमोशनल चोट लगी है, मुझे इमोशनली हर्ट हो रहा है, तो शायद मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, और क्योंकि मुझे फियर ऑफ जजमेंट होगा। तो आई थिंक सबसे पहला पार्ट तो यही रहेगा कि हमें कलेक्टिवली एक फ्रेंडली और सपोर्टिव स्पेस एज अ सोसाइटी क्रिएट करना पड़ेगा, जो इंडियन सोसाइटी में अभी थोड़ा सा लैकिंग है कि हम अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करते। और आप अपनी फैमिलीज में भी देखो तो काफी फैमिलीज में मैंने देखा है इमोशंस के बारे में बात नहीं होती। करियर के बारे में बात होगी, अच्छा पढ़ क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, करियर में क्या करोगे। इमोशंस के बारे में कोई नहीं पूछता, और हम भी नहीं पूछते। तो हमें खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम इमोशंस के बारे में बात करें फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, और उन्हें भी वो स्पेस प्रोवाइड करें कि वो हमसे शेयर कर पाए। तो आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज what can we do to as students to improve our mental health? आई थिंक कुछ टिप्स तो मैंने ऊपर सजेशन में भी दे दी, बट आई थिंक अगर आप कलेक्टिव स्टूडेंट्स की बात करो तो आप लोग अपने कॉलेजेस में सपोर्ट ग्रुप बना सकते हो, या मेंटल हेल्थ का इनिशिएटिव एक स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से वंस इन अ वीक, और स्पेशली आजकल के टाइम पे मे बी वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट करे, और उस सपोर्ट ग्रुप में लोगों को एनकरेज करे अटेंड करने के लिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसा नहीं है बहुत कॉमन नहीं है, काफी कॉमन है। ये बात है कि लोग उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि सेंस ऑफ शेम एसोसिएटेड होता है। तो वन इज यू कैन करेक्ट सपोर्ट, क्रिएट सपोर्ट ग्रुप्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशन है तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हो। उसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगेन माइंडफुलनेस या रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, मेक श्योर यू टॉक अबाउट इट, यू शेयर अबाउट इट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डील विद नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल। ओके, तो नेगेटिव थॉट्स पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेगेटिव पीपल आई थिंक इस पे मैं नोट करके रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि नेगेटिव पीपल हम किससे बोल रहे हैं, कि नेगेटिव लोग कौन होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हो उसके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स उसको शायद नेगेटिव ना बोलते हो। हमारे लिए वो पर्सन नेगेटिव है, बट उसके जो क्लोज लव्ड वंस हैं उसके लिए वो नेगेटिव नहीं है। सिमिलरली हो सकता है हम किसी और के लिए नेगेटिव पीपल की कैटेगरी में आते हो। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ हम लोग अच्छे लोग हैं और बहुत कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जो नेगेटिव पीपल है। इट्स अबाउट सर्कमस्टांसेस, मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है उस पर्सन ने कभी हमें हर्ट किया हो, डोमिनेट किया हो, परेशान किया हो, या वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो। तो उनके उनके भी रीजंस हो सकते हैं, बट उनसे डील कैसे करना है, कभी कभी हमें थोड़ा असर्टिव होना पड़ सकता है कि हम भी अपनी बात उन्हें रखें रादर देन कि वो उन्हें हमें अफेक्ट करने दें। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि आइडिया ऑफ नेगेटिव पीपल भी हमें समझना होगा कि कोई नेगेटिव क्यों है। व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन, हम अभी कवर कर सकते हैं। हाउ डज म्यूजिक थेरेपी रिलीव्स पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रुति ने पूछा है। तो म्यूजिक थेरेपी एक्चुअली जो मैं अभी रेफर कर रहा था ना, कि इट इज वेरी इसेंशियल। थेरेपी में भी हम यही करते हैं कि हम क्लाइंट को अपने इमोशन से कनेक्ट करवा देते हैं विदाउट जजिंग दोज इमोशंस एज नेगेटिव इमोशंस। म्यूजिक भी क्या करता है, म्यूजिक आपको आप कभी भी आपने भी देखा होगा कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी हमें इमोशनल कर देते हैं। कुछ सॉन्ग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और वो सुन के हमें बहुत अच्छा फील होता है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिन्हें सुन के हमें सैड फील होता है, लेकिन उस सैडनेस में भी अच्छा फील हो रहा होता है, अगर आप समझ पा रहे हो। सैड सॉन्ग्स भी हम क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो हम रिलेट कर पाते हैं उन फीलिंग्स से। तो म्यूजिक थेरेपी इसलिए इफेक्टिव होती है काफी बार कि वो हमें हमारे इमोशन से बहुत इजीली और बहुत जल्दी जोड़ देती है, जो रेजिस्टेंस हमें अपने अंदर से आ रहा होता है। हाउ टू स्टॉप डे ड्रीमिंग, अगेन डे ड्रीमिंग क्यों हो रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। डे ड्रीमिंग मोस्टली तब होता है जब हम प्रेजेंट रियलिटी में किसी चीज से भाग रहे होते हैं। वो रियलिटी हमारे आसपास की हो सकती है। सपोज हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा, तो हम डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं जिससे हमें अच्छा फील हो, कुछ फैंटेसाइज करने लग जाते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है। या फिर हमें अपने अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, हम उस फीलिंग से बचने के लिए डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, क्योंकि उस फैंटेसी वर्ल्ड में, उस डे ड्रीमिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो डे ड्रीमिंग तभी रुकेगा जब आप
प्रेजेंट में प्रॉब्लम जो है उसको एज इट इज फेस करोगे. ओके, एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. इफ अ लेडी इज वर्किंग एट अ हायर लेवल इन अ जॉब देन हर हस्बैंड एंड यूजुअली शी इज ट्रीटेड इन सच अ वे एट होम एज शी इज नथिंग. Though for society she is very respected, but she does not get emotional support and respect at home. What to do in this male-dominated society? I understand ये प्रॉब्लम काफ़ी डोमिनेंट है क्योंकि सोसाइटी में पेट्रियार्की काफ़ी टाइम से चली आ रही है. धीरे धीरे कम हो रहा है, बट आई थिंक अभी भी इट्स अ वे वेरी लॉन्ग वे टू गो. बट आई थिंक अभी के लिए तो इस क्वेश्चन पे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये तो कंफर्म है कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. इससे बाकी लोगों को भी थोड़ा सा समझने का मौका मिलेगा कि काफी बार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन ये डिवाइड भी होता है, जो मेल फीमेल के बीच का डिवाइड होता है. एंड इट्स अ वेरी गुड, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल कि आपने क्वेश्चन पूछा. अब इससे डील कैसे किया जाए, अगेन इसमें इट वुड बी टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट कि ये करो, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग हो सकती है जैसा मैं इमेजिन करूं. तो वो तो मैं डिटेल में जानने के बाद ही बता पाऊंगा. बट ब्रॉडली मैं यही बोलूंगा कि अगेन दो पार्ट्स होंगे कि आप डेफिनेटली मेक श्योर कि आप लोगों से शेयर कर रहे हो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, कि क्योंकि काफी बार बहुत शेम भी होता है कि मेरे घर में ऐसा चल रहा है, वो शेयर करने में डिफिकल्टी आती है. तो आप लोगों से शेयर करो, कुछ लोगों से जिन पे आप ट्रस्ट करते हो उनसे सपोर्ट लो. सेकेंडली अगेन ये मैं क्वेश्चन मार्क के साथ ही ये सजेशन दूंगा कि डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली में सिचुएशन कैसी है, धीरे धीरे हमें असर्टिव होना पड़ेगा. क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों ही हम देखते पले बड़े हैं, तो काफी बार वो बहुत कॉमन लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है घर में, तो या मेल डोमिनेशन तो ओके है. तो हमें थोड़ा थोड़ा उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा, विच इज अ गुड थिंग इन द लॉन्ग रन. हो सकता है इनिशियली थोड़ा टर्बुलेंट क्रिएट हो फैमिली में, बट आई थिंक अगेन यहाँ पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है. तो डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन कैसी है, तो बट आई थिंक असर्ट करना, थोड़ा असर्टिव होना अपने इमोशन या उस को रेजिस्ट करना, उस पैट्रियार्की को, इज आल्सो गुड. उससे थोड़ा बहुत झगड़े हो सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट्स गुड. अगेन डिटेल में आंसर मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे डिटेल में पता है कि फैमिली में सिचुएशन क्या है. What can I do when my mind is diversify between two things? Yes, काफी बार हमें कंफ्यूजन आ जाती है कि ये चूज करूं या वो चूज करूं. और स्पेशली ये मैंने देखा है, जिन लोगों को एंजाइटी ज्यादा होती है उन्हें ये कंफ्यूजन अक्सर आती है. और ये कंफ्यूजन का वन ऑफ द कॉज होता है खुद पे कम फेथ होना. क्योंकि इसको ऐसे बोलूंगा कि चॉइसेस तो हम सबको लाइफ में आती है, हर स्टेज पे हमें अलग अलग चीजें चूज करनी होती है, और बहुत क्लियर और ऐसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता कि ये सही बात है ये गलत बात है. अब चूज कैसे करें, मैं इसमें यही बोलूंगा कि आप अगर प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड पे है, अगर आप में फेथ होगा कि मैं कुछ भी चूज कर लूं और मैं कुछ अच्छा बना ही लूंगा, तो रादर देन चूजिंग द राइट ऑप्शन फोकस मोर ऑन कि मैं जो भी चूज करूं मैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर लूंगा. तो इस फेथ पे अगर आप काम करो कि आपको खुद में फेथ कितना है, तो वो चूज करना आसान हो जाएगा. आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहोगे, आप कहोगे कि दोनों चॉइसेस बराबर सी दिख रही है, लेट मी चूज वन एंड आई विल क्रिएट समथिंग गुड आउट ऑफ इट. तो आई थिंक rather than focusing on external, main focus should be on कि मुझे खुद में faith है या नहीं. How can we give positive vibes? I think यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन मार्क लाऊंगा कि पॉजिटिव वाइब्स फीलिंग्स वाइज अच्छा है, बट नेगेटिव वाइज भी अगर हमारे अंदर से आ रही है तो हमें नेगेटिव फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए. नेगेटिव फीलिंग्स को अटेंड करते हुए जो पाथ जाएगा वहीं से पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आ जाएगी. जब आप किसी से, कभी आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, आप किसी से शेयर करते हो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, उसके बाद जो कनेक्शन सामने वाले के साथ फील होता है आपको, वो ट्रस्ट जो बिल्ड हो जाता है. अगर आप देखोगे आपकी फ्रेंडशिप, जो आप जिन्हें आप बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हो, उन्हें आप बेस्ट फ्रेंड्स इसलिए बोलते हो क्योंकि कहीं ना कहीं किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे आपने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी वल्नरेबिलिटीज उनसे शेयर की होती है, तब वो सेंस ऑफ कनेक्शन आ पाता है. तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव वाइब्स के लिए एस्पायर करना अच्छा है, बट अगर वो नेगेटिव
फीलिंग्स को भी आप शेयर करोगे तो पॉजिटिव वाइब्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगी. हाउ टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस. आई थिंक ये भी कॉन्फिडेंस वाला इशू तो बहुत लोग फेस करते हैं. आई थिंक इसमें भी मल्टीपल, इनफैक्ट एक बुक में सजेस्ट करूंगा, seven, I'm not recollecting the exact name, 7 ways to boost your self confidence. ये एक बुक है जिसमें फीलिंग्स के बारे में भी काफी स्ट्रांगली बात की जाती है. तो आप वो 7, अगेन मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है, आप सर्च कर सकते हो, 7 ways to boost your self esteem, यस कुछ ऐसा नाम है. तो वो काफी इफेक्टिव बुक है. तो जो नॉर्मली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बताया जाता है कि हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, वो काफी बार काम नहीं करता. बट अगर आप उस बुक में अगर आप देखोगे, उसने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कंपोनेंट में कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है. कुछ केसेस में वो सेल्फ एस्टीम हो सकता है कि आपको अपनी वर्क में अच्छा करके कॉन्फिडेंस आए. कुछ में हो सकता है आपको आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आपको कॉन्फिडेंस आए, आपका फैमिली में इमोशनल एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपको कॉन्फिडेंस आए. आप अपने अंदर कॉन्फ्लिक्टेड फील नहीं करते, आप अपने आप को अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस करने का टाइम देते हो तो कॉन्फिडेंस आ सकता है. आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम कर सकते हो, वो तो खैर थोड़ी एक्सटर्नल चीजें हैं, तो आई गेस आप उस बुक में डिटेल में पढ़ सकते हो. हाउ टू डील विद फ्रेंडशिप्स विच डोंट गो वेल एंड टू दैट ग्रीफ. ओके, सो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि उस ग्रीफ के साथ कैसे डील किया जाए, कुछ फ्रेंडशिप जो अच्छी नहीं गई. तो यहाँ पे 2 चीजें बोलूंगा. अगर तो ऐसा है कि फ्रेंडशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लेकिन उसमें इश्यूज आ रहे हैं, या रिलेशनशिप में भी अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो ओपनली काफी बार होता है दोनों साइड चाहती है बात करना लेकिन कोई भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेता एड्रेस करने का. इश्यूज आते हैं हर तरह के रिलेशनशिप में. तो 2 कंपोनेंट है, या तो अगर बिल्कुल एंड हो चुकी है फ्रेंडशिप और हमें बुरा फील हो रहा है, ग्रीफ फील हो रहा है, तब तो आप उस ग्रीफ के बारे में अपने अब जो आपकी लाइफ में लव्ड वन है, फैमिली मेंबर्स या कोई और फ्रेंड, उससे शेयर करो. या फिर आप जो एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे खोना नहीं चाहते, तो ओपनली उस पर्सन से बात करो जो भी इश्यूज आपको आ रहे हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस इशू को सॉल्व करो rather than blaming each other. Someone asked, I am losing focus easily. I lose focus easily, get easily demotivated. Is it part of mental illness? अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपका फोकस लूज होता है या डिमोटिवेटेड फील होते हो तो ये मेंटल इलनेस है. बट कभी कभी ये डिप्रेशन का भी सिम्टम हो सकता है. बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा डिप्रेशन का सिम्टम होता है. तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड इफ इट्स मेंटल इलनेस और नॉट. Sometimes we don't want to share about particular topic with our parents or friends in fear of judgment. How to overcome that? Definitely I understand, ये हम सबके लिए difficult होता है, और I think ये question हम सबके लिए important है, क्योंकि वो fear of judgment सोसाइटल है. ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, सोसाइटी ही ऐसे ट्रेंड होती है कि हम बात नहीं कर पाते कुछ टॉपिक्स पे. तो मैं यही बोलूंगा कि किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर्स में हो. और आप देखोगे अगर आप एक फैमिली फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में नहीं शेयर कर पा रहे, आप देखोगे आपके फ्रेंड्स और पेरेंट्स भी नहीं शेयर कर पाते. वो भी उसी फियर ऑफ जजमेंट से शायद सफर कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स हम सबको आती है, बट हम वो भी शेयर नहीं कर पा रहे, हम भी शेयर नहीं कर पा रहे. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी को तो शुरुआत करनी है, तो आप ही थोड़ा करेज के साथ खुद से शेयर करो, तो वो हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज, someone asked, if a person cries a lot even on tiny matters, does that mean she is a victim of mental illness? अगेन इसमें मैं डायग्नोस नहीं करूंगा. कुछ केसेस में अगर रोना आता है, इट्स वेरी नॉर्मल, रोने में कोई बुराई नहीं है. बट अगर ये इंटरनेट चला गया, am I audible? आप मुझे Yes, चैट, sir. ओके ठीक है. सो कमिंग बैक टू इट, इफ अ पर्सन क्राइज अ लॉट, तो काफी बार मतलब डिप्रेशन का ये सिम्टम भी हो सकता है कि एक पर्सन बिना रीजन के रोना आ जाता है. तो आप अगेन प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हो, बट अदरवाइज
अगर वो नॉर्मल है आपके लिए, उससे आप बॉदर नहीं हो रहे या आप मैनेज कर पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि रोना मतलब मेंटल इलनेस. क्राइंग इज एट टाइम्स वेरी हेल्दी. बट आपको ये देखना है कि अगर वो कंटिन्यू हुए जा रहा है और वो आपको वीक फील करा रहा है या खत्म ही नहीं हो रहा वो पेन, तो मे बी आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हो विदाउट एनी जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंटल इलनेस. निष्ठा ने पूछा, इफ आवर लव्ड वंस से अनकाइंड वर्ड्स टू अस, हाउ डू वी रिएक्ट. आई थिंक अगेन इसमें मुझे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चाहिए होगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन. बट अगर काफी बार गुस्से में हमारे लव्ड वंस हमें कुछ बुरा बोल जाते हैं, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है. जरूरी नहीं है कि हम बस ऐसे ही सुन ले उन्हें, हमें खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्हें रखना इंपॉर्टेंट है. बट वो हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने हम पे सपोज गुस्सा कर दिया या चिल्ला दिया, तो अगर हम भी बदले में चिल्लाएंगे या उन्हें ब्लेम करेंगे, तो चांसेस कम है कि उस पर्सन को समझ आएगा. इसके लिए आप थोड़ा सा असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ सकते हो कि आप रादर देन कि उस पर्सन पे आप भी चिल्ला दो, आप उस पर्सन को थोड़ा असर्टिवली, जब आपका माइंड भी थोड़ा सा काम डाउन हो चुका है, तब उस पर्सन को से आप बात करो कि जब आपने ये बोला था तो मुझे बुरा लगा था, रादर देन ब्लेमिंग द पर्सन कि तुमने मुझे ये कैसे बोल दिया. तो यहाँ पर आई थिंक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप असर्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं. काफी लोग या तो अग्रेसिवली कम्युनिकेट करते हैं या सबमिसिवली कम्युनिकेट करते हैं कि बोलेंगे ही नहीं कुछ और सहते रहेंगे या फिर गुस्सा करते रहेंगे, ब्लेम करेंगे. तो असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि आप सामने वाले को अपनी फीलिंग के बारे में बताओ रादर देन ब्लेमिंग द अदर पर्सन. हाउ टू कोप विद फीलिंग्स दैट अराइज आउट ऑफ मेमोरीज. तो ये भी काफी कॉमन होता है कि कुछ पास्ट में मेमोरीज हमारी ऐसी होती है जहां से, और वो काफी बार मेमोरीज फ्लैशबैक की तरह आती है कि एकदम से कुछ याद आ गया और हम इमोशनल हो गए. तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इमोशंस, कुछ ना कुछ फीलिंग्स बहुत पुरानी सप्रेस्ड अंदर पड़ी हुई है जो मेमोरीज की फॉर्म में बाहर आना चाह रही है. तो आई थिंक अगेन वहां पे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि रादर देन उन मेमोरीज से दूर भागा जाए, जो कि हम काफी बार कहते हैं कि मैं उन मेमोरीज को भुला देना चाहता हूँ या भुला देना चाहती हूँ. आप कभी भी मेमोरीज को भूल नहीं सकते, आप उन फीलिंग्स को जरूर एड्रेस कर सकते हो, जिसके बाद वो मेमोरीज तो रहेंगी बट उनसे एसोसिएटेड जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएगी. और काफी बार हम थेरेपी और काउंसलिंग में भी क्लाइंट्स के साथ यही करते हैं कि हम उन मेमोरीज से एसोसिएटेड फीलिंग्स को प्रोसेसिंग करते हैं, और वहां से वो मेमोरीज तो रहती है बट जो पेन होता है वो कम या खत्म हो जाता है. अंजलि सिंह ने बोला है, थैंक्स फॉर योर सजेशन, वेलकम. Someone asked, I am a slow learner and my family puts me down that I can't achieve anything in life, and how to handle this situation. I think काफी बार अगेन काफी लोग प्रेशर बिल्ड करते हैं, फैमिली मेंबर्स प्रेशर बिल्ड करते हैं, और ऐसे में दो चीजें हैं. एक तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है आप करते भी हो, दैट आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ स्लो लर्नर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है. जैसे मैं अपना भी एग्जांपल बताऊं, me myself I am a slow learner, but I know that I am very consistent with things. मैं सीखता स्लो हूँ बट धीरे धीरे कंसिस्टेंटली चीजें मैं स्मूथ कर लेता हूँ विद टाइम. तो आपको पहली बात तो खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या इस चीज पे खुद को जज ना करना कि हाँ मैं स्लो लर्नर हूँ, सो आई नीड टू बी कंसिस्टेंट विद थिंग्स, मैं रेगुलरली चीजें करता रहूँ. सिमिलरली फैमिली से भी को ब्लेम नहीं करने की जगह उनको कभी बिठा के बात करो कि आप मुझे ब्लेम करना बंद करो, उससे मुझे नेगेटिव फील होता है. अगेन इसके लिए इमोशनल कॉन्वर्जेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप फैमिली से बात करो और उन्हें समझाओ कि मेरे साथ ये दिक्कत आती है कि मैं धीरे सीखता हूँ, और जब ये बात अच्छे से हो पाएगी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ब्लेम ऑन ईच अदर, तो हो सकता है फैमिली मेंबर्स रादर देन आपको ब्लेम करने के आपको सपोर्ट करें उस प्रोसेस में, क्योंकि काफी बार उन्हें भी यही लग रहा होता है कर क्यों नहीं रहा. तो उनको वो कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उस बारे में अच्छी खासी लंबी बात हो, मल्टीपल टाइम्स बात हो, जिससे फैमिली मेंबर्स और आप सेम पेज पे आ पाओ, फिर एक दूसरे को सपोर्ट डेफिनेटली कर सकते हो. हाउ टू कोप विथ फेलियर. आई थिंक फेलियर के साथ भी डायनेमिक्स फीलिंग्स के लेवल पे सेम ही रहती है. फेलियर्स के बाद थोड़ा सा होपलेस फील करना, बुरा फील करना, हर्ट फील करना, और ऐसा फील करना कि मे बी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ये बहुत नॉर्मल है.
और उन फीलिंग्स के ड्यूरिंग उन फीलिंग्स से अगेन लड़ना नहीं है, जबरदस्ती की पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं लाना। काफी बार पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि हमें फेलियर हुआ, हमें बुरा फील हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा फील करने की, जिससे क्या होता है अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। एक लेवल पे हम पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं, दूसरे लेवल पे हमें बुरा फील हो रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बहुत हर्ट करता है। अगर फेलियर हो भी जाए, फेलियर से एसोसिएटेड जो फीलिंग्स है उनको फील करो, लोगों से बात करो, अपने लव्ड वन से शेयर करो उस फेलियर के बारे में। विद टाइम आप मूव ऑन कर जाओगे। उसके बाद ये जरूर देखो कि फेलियर हुआ क्यों, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, और वो आप फिर आगे आने वाले अपने गोल्स पे यूज कर सकते हो। लॉकडाउन में बच्चे घर में बंधे हुए हैं, ऐसे में चिड़चिड़ापन, आक्रामकता के शिकार हो रहे हैं। उन्हें तमाम कोशिश के बावजूद नॉर्मल सिचुएशन देना मुश्किल हो रहा है। पेरेंट्स कैसे डील करें? यस, ये एक बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, अग्रेसिवनेस, आक्रामकता, ये बहुत नेचुरल है फील करना। तो मैं पेरेंट्स को यही सजेशन दूंगा कि पहली बात तो आप खुद एक्सेप्ट कर लो कि बच्चों को ऐसा फील होगा ही। बच्चे थोड़ा चिड़चिड़े होंगे, आक्रामकता उनमें होगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, और हो सकता है आप खुद में देखो आपको भी कभी कभी थोड़ा ये फील हो रहा होगा, क्योंकि हम भी घर में बंधे हुए हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उनको बिठा के बात करो कि ऐसा फील होना नॉर्मल है और हम आपके लिए हैं यहाँ पे, आप हमसे शेयर कर सकते हो। और जब आप ये करोगे तो आपको दिखेगा कि बच्चे का सडनली आप पे ट्रस्ट आ जाएगा कि ये देख पा रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसके अपोजिट हम एक और चीज कर सकते हैं जो शायद थोड़ी नेगेटिव हो। सपोज हम बच्चे पे गुस्सा कर दे कि तुम चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो, तुम इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हो, तुम गुस्सा क्यों करते हो। अगर हम वो करेंगे, उन्हें शेम करेंगे उन फीलिंग्स के लिए, तब वो हमसे और दूर हो जाएंगे इमोशनली, वो हमसे बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। तो आप मे बी ये भी शेयर कर सकते हो कि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें इन बताया कि ये फीलिंग्स इस टाइम पे फील होना बहुत नॉर्मल है, और मैंने देखा कि तुम में भी ये फीलिंग्स हो रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ये फीलिंग्स मत शो करो, तुम आके मुझसे बात करो, हम प्यार से बात करेंगे। जो भी फीलिंग्स है तुम मेरे पास आ सकते हो हमेशा। और अगर आप ये स्पेस उन्हें दोगे तो हो सकता है वो शुरू में ना आए, बट आप रोज उनसे बात, नॉर्मली बात करो कि आई एम हेयर फॉर यू, मुझसे बात कर सकते हो। धीरे धीरे वो आपसे ओपन अप करना शुरू कर देंगे। और नॉट जस्ट पेरेंट्स, ये मैं सबको ही बोलूंगा जितने भी लोग अभी है वेबिनार में, कि आप अपने फैमिली मेंबर से बात करो कि फीलिंग्स होना बहुत नॉर्मल है। हमें मिलजुल के एक दूसरे से वो फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है सर, प्लीज रिकमेंड सम साइकोलॉजी बुक्स सो दैट वी कैन सेल्फ हील स्मॉल स्मॉल इश्यूज। आई थिंक एक बुक तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, 7 ways टू इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम। एग्जैक्ट टाइटल आप थोड़ा गूगल कर लेना। उसके अलावा डॉक्टर इरविन येलोम, YALOM, इरविन येलोम की बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, वो भी थेरेपी के अराउंड ही है, वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। तो उनकी आई थिंक 7-8 बुक्स है डॉक्टर इरविन येलोम की, तो वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। Someone asked, I overuse social media. It impacts me negatively. Should I leave social media for a while? डेफिनेटली सोशल मीडिया, आई गेस ये काफ़ी कॉमनली हम सब फील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। हम एडिक्टेड है उससे, हम यूज़ करना छोड़ भी नहीं पाते, बट वो यूज़ करने के बाद हल्की सी नेगेटिविटी फील हो रही होती है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन पे बॉम्बार्ड हो जाती है एक साथ। तो अगेन इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ सोशल मीडिया। अब क्या होगा, इन अ वे आप फिर से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और आप 1-2 दिन तो छोड़ दोगे, बट लेकिन फिर उतने ही फोर्स से शायद वापस दोबारा ज्वाइन कर लोगे। इसलिए कंट्रोल शायद उतना हेल्प नहीं करेगा। आप ये जरूर कर सकते हो कि आप लिमिट कर दो कि फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया अच्छे से चलाऊंगा, जम के चलाऊंगा, लेकिन सिर्फ इस टाइम पीरियड के बीच में, टाइम पीरियड फिक्स कर दो। उसके बीच में जितना करना है कर लो, उसके बाद नहीं करूंगा। क्योंकि बिल्कुल बंद कर दोगे तो फिर 2-4 दिन बाद वापस से सेम शुरू हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टाइम लिमिट कर दो कि इस टाइम पे मैं चलाया करूंगा, शाम को इतने बजे या रात को इतने बजे। आई वॉन्ट टू कंट्रोल यूज ऑफ माई फोन, सेम चीज। और पहला तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस टाइम पे ये काफी कॉमन है कि आप सोशल मीडिया या फोन से एडिक्ट हो जाओ, बट अगेन टाइम फिक्स कर दो कि इस टाइम पे मैं ज्यादा यूज करूंगा, बाकी टाइम में
ऐसी हॉबीज पे दूंगा जहाँ पे मुझे जॉय मिलता है रादर देन प्लेजर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, प्लेजर और जॉय के बीच का डिफरेंस समझना। नेक्स्ट है, सर आई read about affirmation and law of attraction. Does this help in overcoming negative thoughts? Positive affirmation and law of attraction, मैंने भी law of attraction को समझा है काफी डिटेल में। वो एक लेवल पे तो वर्क करता है, बट उसका एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है, जहाँ पे हम पॉजिटिव या एफर्मेशन या पॉजिटिव थिंकिंग के चक्कर में हम नेगेटिव फीलिंग्स को दबा दें। तो मैं बोलूंगा कि जरूर आप पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करो, और पॉजिटिव एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली टेक्निक्स यूज करो, इट विल हेल्प। बट ये हमेशा ध्यान रखना कि उस चक्कर में कहीं मैं अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को सप्रेस तो नहीं कर देता या कर देती। अगर वो हो रहा है तो आप देखोगे वो लॉन्ग रन में आपको हार्म करेगा। तो अगेन नेगेटिव फीलिंग्स को लेके अवेयर रहो कि नेगेटिव फीलिंग्स उस प्रोसेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सप्रेस ना हो जाए। किसी ने पूछा है, सोशल मीडिया क्रिएट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द लॉकडाउन and I am unable to meet those standards and it increases my stress. This is definitely true, और मैंने initial slide में mention भी किया कि काफ़ी यूट्यूबर, काफ़ी सेलिब्रिटीज ये बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव रहो, मेक श्योर यू आर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जब 2-4 महीने बाद ये लॉकडाउन खुले तो आप एक नई पर्सन बन के बाहर आओ, कुछ नया सीख के बाहर आओ। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इस टाइम पे नेगेटिव फीलिंग्स तो नेचुरल है होना, और उस वजह से प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ पाएगी। तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई विल क्रिएट रूटीन, आई विल ट्राई टू बी प्रोडक्टिव, बट आई विल ऑल्सो एक्सेप्ट कि इस टाइम पे शायद प्रोडक्टिविटी उतनी ना आ पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप ये समझो कि रादर, और अदरवाइज वो प्रेशराइज आपको करेगा, या अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी खुद से एक्सपेक्ट करोगे। एस्पायर करो बट विद सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस कि नहीं भी हो पा रहा तो आई विल डू समथिंग विच आई एंजॉय। आई विल टॉक टू समवन, मैं वीडियो कॉल पे दोस्तों से बात कर लूँ, एंड विद अ गुड माइंडसेट देन आई विल गेट बैक टू दोस थिंग्स। और प्रोडक्टिविटी उतनी ना भी आ पाए तो डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। तो आई थिंक काफी क्वेश्चंस आंसर हो गए। एक बार हम देख लेते हैं अगर और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो गाइज हम लोग मैं एक बार समराइज कर देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज की वेबिनार में था और उसको मैंने एक टर्म्स में लिखा है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। इट इज वेरी मच नॉर्मल टू फील ऑल दीज फीलिंग्स, depression, stress, anxiety, anger, sadness, disappointment, fear, frustration, loneliness, thoda bahut relationship and family issues bhi, these are very common during this time of pandemic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा मुझे फील हो सकता है इस ड्यूरेशन में, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। एक्सेप्ट कर लो उन फीलिंग्स को, और आप देखोगे उस एक्सेप्टेंस से काफी आपको रिलीफ मिलेगा। और एट द सेम टाइम टॉक टू पीपल, शेयर करो अपने लव्ड वन से अपनी फीलिंग्स को। उसके बाद भी मैं ये जरूर बोलूंगा, अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करो। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी अवेलेबल है, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना। आप काउंसलिंग या साइकोथेरेपी अवेल करो, प्रोफेशनल हेल्प अगर आपके बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहे इमोशंस, तो इट्स वेरी नॉर्मल टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। देयर शुड नॉट बी एनी स्टिग्मा अराउंड इट। ये जजमेंट नहीं होनी चाहिए कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी तो वो लोग जाते हैं जो मेंटल होते हैं, पागल होते हैं। इट इज अबाउट अटेंडिंग टू योर इमोशन, समझना कि इमोशनल लेवल पे, माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पे मेरे अंदर चल क्या रहा है, और वहां से उन इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाना। सो विदाउट एनी स्टिग्मा आई वुड एनकरेज एवरीवन टू सीक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो दो चीजें आप कर सकते हैं। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है विद द नेम माइंड ट्यून। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे एक्सपर्ट से भी काउंसलिंग या साइकोथेरेपी ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है themindtune.com। एंड सेकेंडली, अगर कुछ क्वेश्चन हो सकता है लोगों ने मल्टीपल रीजंस की वजह से अभी ना पूछे हो, या बाद में आने वाले दिनों में आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है themindtune के नाम से, आप वहाँ पे हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज आप हमें भेज सकते हो, एंड वी विल मेक श्योर कि हम हर इंडिविजुअल के क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करेंगे।
तो आई होप ये वेबिनार आपको थोड़ा हेल्प करा हो और कुछ चीज़ें आपको यूजफुल लगी हो। तो अब हमारे पास डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स पे भी एक दो स्लाइड्स है। अगर आप लोगों के पास और टाइम है तो हम वो भी कवर कर सकते हैं, अदरवाइज हम रैप अप कर सकते हैं। तो आप मैसेज पे मुझे बता सकते हो कि हम रैप अप करें। ओके, ठीक है। थैंक यू सर फॉर इंटरेक्टिव सेशन। बाकी लोग भी बता सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स पे भी एक स्लाइड है, आप चाहते हो वो हम कवर करें या आज के लिए रैप अप करें? वो स्लाइड्स हम अपने इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, अगर वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम कवर करें, तो आई थिंक मैं बहुत क्विकली विद इन 3-4 मिनट्स वो स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ। तो शुभम, डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो गाइज ये डिप्रेशन के सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं सारे सिम्टम्स। फीलिंग डाउन, अपसेट और टीयरफुल, feeling restless, agitated, irritable, feeling guilty or worthless, feeling empty and numb, feeling isolated and unable to relate to other people, finding no pleasure in things that you usually enjoy. जो चीजें आप पहले enjoy करते थे उसमें अब आपको उतना मजा नहीं आता, चीजों में इंटरेस्ट कम हो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम कम हो गया है, होपलेस फील होता है, डेस्पेयर फील होता है, और कुछ केसेस में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन का मतलब है कि सारी फीलिंग्स होनी चाहिए। इसकी डायग्नोसिस के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि इसमें से कुछ फीलिंग्स कम से कम 2 या 3 हफ्तों तक होनी चाहिए और सस्टेन्ड होनी चाहिए वो फीलिंग्स, क्योंकि ये फीलिंग्स हम सबको फील हो सकती है, बट वो डिप्रेशन है या नहीं है, या डिप्रेशन में भी माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, सिवियर डिप्रेशन है, वो डिपेंड करता है कि इनमें से कितनी फीलिंग्स आपको हो रही है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रही है, किस लेवल पे हो रही है। तो अगेन डायग्नोसिस तो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, बट जस्ट टू गिव अ ब्रॉड आइडिया, इसलिए मैंने सिम्टम्स वर्ड यूज नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया साइंस, क्योंकि ये फीलिंग्स फील होना कॉमन भी है, बट अगर बहुत ज्यादा देर से फील हो रही है या बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, बहुत लंबे टाइम से फील हो रही है, 2-3 हफ्ते से, तो वो डिप्रेशन हो सकता है। बट अगेन आप खुद को डायग्नोस मत करो, इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ही लो, और इसमें आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी देख सकते हो कि कहीं उन्हें भी ऐसा फील ना हो रहा हो। एंजाइटी वाली स्लाइड्स पे हम जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर साइंस ऑफ एंजाइटी। फीलिंग पैनिक, फियर और अनईजीनेस। स्लीप के इश्यूज भी आते हैं जब आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। नॉट बीइंग एबल टू स्टे काम और स्टिल, बॉडी और माइंड में एक रेस्टलेसनेस हमेशा चलती रहती है या दिन में काफी बार चलती है। एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं कभी कभी बॉडी के पार्ट्स ठंडा फील होना, स्वेटी फील होना, नम फील करना, या हाथ या पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होना, ये फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होना, हार्ट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ड्राई माउथ या नॉजिया फील करना, मसल्स टेंस हो जाना, डिजीनेस फील करना, तो ये एंजाइटी के साइंस है। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये साइंस हम सबको हो सकते हैं, तो आप खुद को डायग्नोस मत करो, बट अगर ऐसे सिम्टम्स आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हो। ओके, सो आई गेस सेल्फ एस्टीम, आई थिंक हमें अभी क्योंकि लेट काफी हो गया है तो हम कवर नहीं करते, तो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। तो गाइज अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली आंसर इट देयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इंटरैक्टिव ऑडियंस, एंड टेक Thank केयर। you, sir. Thank you Yes. for this enlightening and informative session, sir. We really enjoyed the webinar and learned a lot too. Thanks Thank a you. lot. Thank you for Thank giving you, me this everyone. opportunity. Yeah. Thank you, everyone, for attending and making webinar 5.2 a success. I would like to extend my gratitude to our acting principal, Dr. Shiv Kumar Sahdev, our convener, Dr. Darshan Pandey, our president, Nishtha Sethi, and the vibrant team of ARC. Kudos to the team. Thank you, everyone. Okay, thank you guys. Take care. Bye. लेख जी, Bye, sir. जी बताइए। myself Dr. Darshan Pandey, जी सर बताइए। faculty in Shivaji College, I teach Hindi actually. जी मैं हिंदी में बोलूँगा। हाँ जी बिल्कुल। सर मैं ARC की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को आपने हमारे सामने रखा, जी और थैंक यू सर।
ये कोरोना काल में हम सभी लगभग एक जैसी सिचुएशन में हैं। बिल्कुल। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई हम सब में कोई अंतर है इस समय। जी 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 जी। तो ऐसे समय में आपने इस तरह से बातें रखी हैं वो हम सब के लिए काफ़ी लाभकारी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, और thank आपने समय दिया तो मैं पूरे कॉलेज की तरफ से बिल्कुल। और प्रिंसिपल की तरफ से और अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं जी आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित जी, करता हूँ। थैंक यू सर। आई एम Thank you very हैप्पी much. कि जी। आप, अगर आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाया हो, एंड लेट्स स्टे इन टच। आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे ऐसा कुछ अगर प्रोग्राम होगा। थैंक यू।